In Unacademy Live 7, today I will discuss bacterial cytoplasm. It is also known as cytosol. Inside the membrane, there is gelatinous mass of protein, lipid, carbohydrate, inorganic ions dissolved in water. In cytoplasm, nucleus is found, but nucleus is non-membraned. That is simply called as nucleus. In young stage, vacuole is absent, but at maturity, vacuole develops. In some bacteria, sulfur particles are also present. In green bacteria, bacteriochlorophyll, that is bacterioviridin present, chlorobium chlorophyll present, and carotenoids also present. Mitochondria, plastids, endoplasmic reticulum, all are totally absent. Ribosome is 70S type. Now, I will discuss about mesosome. Outer membrane of cytoplasm forms coiled invagination, that is known as mesosome. On the upper surface of mesosome, respiratory enzymes are present. It takes place in function of respiration. Cell wall formation is also takes place by mesosome. mesosome से सेल वॉल फॉर्मेशन भी होता है और मेसोसोम के अपर सरफेस पर जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं दे टेक पार्ट इन रेस्पिरेशन. नाउ न्यूक्लियस कंटेन्स single chromosome which consists of circular DNA and non-histone protein. It means histone protein is not attached with DNA. That is the diagnostic character of bacterial DNA. Bacterial DNA have 5 into 10 raised to power 6 base pairs. इतने बेस पेयर इसमें होते हैं, माने न्यूक्लियोटाइड पेयर्स, एंड लेंथ इज 1 nm. द बैक्टीरियल DNA is haploid and it replicates by splitting. That's all about nucleus. Now I will take plasmid and एपिसोम. प्लास्मिड जो होता है ये एक्स्ट्रा जेनेटिक डीएनए है, हेरिडिटरी कैरेक्टर है. वैसे तो हेरिडिटरी कैरेक्टर डीएनए में होता है, बट बैक्टीरिया पॉसेस एक्स्ट्रा जेनेटिक
material consists of DNA that is known as plasmid. अब हम लेते हैं टाइप ऑफ प्लाज्मिड. प्लाज्मिड इज ऑफ फॉलोइंग थ्री टाइप्स. फर्स्ट, F or fertility factor. F fertility factor, they promote sexual conjugation. They are found in male only. You can say this is F plus. Pili are also present on F factor and that adheres with the female for conjugation. तो F फैक्टर जो है ये डोनर होगा, ये मेल में पाया जाएगा और इसमें पिलाई पाए जाएंगे और यह पिलाई फीमेल से अटैच होता है, कॉन्जुगेशन ट्यूब का निर्माण करता है, फॉर्मेशन करता है और कॉन्जुगेशन ट्यूब के फॉर्मेशन के बाद जो मेल जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर होता है फीमेल जेनेटिक मटेरियल में. नेक्स्ट है F माइनस. F माइनस में ये केवल रिसिपिएंट को एक्ट करता है. तो जहां पर F प्लस मेल ये डोनर है वहीं पर यह रिसिपिएंट है. नेक्स्ट है R प्लाज्मिड. These bacteria resistant to drug and environmental change. Resistant to drug and environmental change. जैसे environmental change हो रहा है, सर्दी से गर्मी हो रही है और किसी ड्रग का इसके ऊपर एक्शन किया जा रहा है तो उसके लिए ये रेजिस्टेंट होता है. नेक्स्ट लास्ट है कोल या कार्सिनोजेनिक फैक्टर. इट सिक्रीट्स कॉल्सिन दैट एक्ट्स एज एंटीबायोटिक इफेक्ट. नाउ एपिसोम प्लाज्मिड रिमेन अटैच्ड to the bacterial chromosome and which can integrate. Just you cannot say or you cannot differentiate plasmid and episome. You can say they are synonyms. अब हम लेते हैं स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया. स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया that is important for BSc and MSc in practical. Hence Christian Graham stained bacteria and classified bacteria into two categories, gram positive bacteria and gram negative bacteria. तो सबसे पहले हम लेते हैं कि इसका स्टेन कौन सा है. जिसमें कि बैक्टीरिया को आप स्टेन करेंगे वो स्टेन है क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन सॉल्यूशन. वॉशिंग करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, एसीटोन और एथिल अल्कोहल. तो ग्राम ने इस स्टेन के द्वारा बैक्टीरिया को स्टेन किया. सबसे पहले ग्राम पॉजिटिव देखा इन्होंने. बैक्टीरिया को क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन सॉल्यूशन में स्टेनिंग की गई. आफ्टर स्टेनिंग इट गेट्स डीप पर्पल कलर. डीप पर्पल कलर आप इसे नोट कर लें. देन इट इज वॉश्ड विथ एथिल अल्कोहल और एसीटोन. द कलर रिटेन्ड
ये डिकलराइज नहीं होता। retain deep violet color or deep purple color, then counter stain by iodine, by safranin or fuchsin, that remains deep color। फिर से बताते हैं आपको, ग्रॉम ने बैक्टीरिया को क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन सॉल्यूशन से स्टेन किया। स्टेनिंग के बाद बैक्टीरिया जो है डीप पर्पल कलर रिटेन कर लिया, ले लिया। अब इसे वॉशिंग की गई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से, आइदर एसीटोन और एथिल अल्कोहल। इसका जो डीप कलर वायलेट कलर है ये रह जाता है, ये डिकलराइज नहीं होता। फिर काउंटर स्टेन किया गया सैफरिन या फ्यूस्चन से, वो डीप कलर, डीप पर्पल कलर वो रह जाता है। ग्राम ने इसे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहा। अब हम सेकंड आते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया को इन्होंने क्रिस्टल वायलेट आयोडीन से स्टेन किया, डीप पर्पल कलर आ गया। लेकिन जब ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एसीटोन और एथिल अल्कोहल से वॉश किया, बैक्टीरिया गेट डीकलराइज्ड, बैक्टीरिया का कलर जो है समाप्त हो जाता है। और जब काउंटर स्टेन किया गया सैफरनिन या फ्यूस्चिन से, इट अगेन बिकम्स रेड। इसको इन्होंने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहा। अब इसका कारण क्या है ग्राम नेगेटिव का? द सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कंटेन्स अल्कोहल विच इज सॉल्युबल इन लिपिड, दैट इज वाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया विल डीकलराइज्ड। जब वो डिजॉल्व कर लेगा तो डीकलराइज हो जाएगा। अब जब डीकलराइज हो गया तो अब इससे आप सैफरनिन या फ्यूस्चिन से करेंगे तो वह जो है रेड कलर ले लेगा, क्योंकि लिपिड खत्म हो गया, निकल गया अल्कोहल के साथ। सेकेंड, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में लिपिड नहीं होता, और जब इसमें लिपिड नहीं होता तो जब एक क्रिस्टल वायलेट ले लेता है तो क्रिस्टल वायलेट ले लेने के पश्चात ये डीकलराइज नहीं होगा, ये पर्पल कलर में ही रहेगा। अब हम बताते हैं आपको कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उसकी केमिस्ट्री क्या है और उसका मेजरमेंट क्या है। तो सबसे पहले हम लेते हैं सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो फर्स्ट है 3 mm थिक एंड वेरी हार्ड, इसे आप नोट कर लें। सेकेंड है ड्राई वेट is about 10 to 20% of total bacterial cell. Third है cell wall contains peptidoglycan 10%, lipopolysaccharide 50%, lipid 11 to 22%, lipoprotein 15% and phospholipid 3%. नेक्स्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि इसकी सेल वॉल टिकोइक एसिड नहीं उसमें पाई जाती। सेल वॉल डू नॉट कंटेन टिकोइक एसिड। दीज आर नॉट डिस्ट्रॉयड बाय पेनिसिलिन। इनकी सेल वॉल जो है ये पेनिसिलिन के द्वारा डिस्ट्रॉयड नहीं होती या किसी अदर एंटीबायोटिक के द्वारा भी, इसलिए ये पैथोजेनिक है। इनको केवल डिस्ट्रॉय किया जा सकता है टेट्रासाइक्लिन से, अमीनोग्लाइकोसाइड से। अमीनोग्लाइकोसाइड में मार्केट में आपका आता है जेंटामाइसिन, नियोमाइसिन। अब हम आते हैं सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अब आप इसको नोट कर लें। अब हम सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया देखते हैं तो इसकी सेल वॉल जो है
25 to 30 nm थिक होती है और इसका ड्राई वेट टोटल सेल वॉल का 20 to 40% होता है। इट कंटेन्स पेप्टिडोग्लाइकान 60 to 90%। प्रोटीन एंड पॉलीसेक्राइड इज in very few amount, less amount. Cell wall contains teichoic acid. Great difference between negative and positive. नेगेटिव में आपको टिकोइक एसिड नहीं मिल रहा है और यहां आपको टिकोइक एसिड मिलेगा। दिस बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इज सेंसिटिव टू पेनिसिलिन। इसमें लिपिड 1 to 4% होता है। Now I will compare gram positive bacteria and gram negative bacteria. अब हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल का कंपैरिजन, उसका टेबल बना करके आपको दे रहे हैं। और जब भी कभी कंपैरिजन या डिफरेंस आवे तो आपको इसी तरह का टेबल बनाना है, नहीं तो आप लिख करके आते हैं और आपको ये पता लगता है कि आप लिखते सही हैं लेकिन एग्ज़ाम में मार्किंग आपकी कम हो जाती है। तो टेबल हमेशा इसी तरह से बनाइए। एक तरफ मैंने लिखा है कैरेक्टर, दूसरे में लिखा है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और तीसरे में लिखा है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो पहला हम थिकनेस लेते हैं, सेल वॉल की थिकनेस। ये 3 mm थिनर होता है और ये थिकर है 25 to 30 nm। अमीनो एसिड की बात करते हैं तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में बहुत कम अमीनो एसिड होते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में अमीनो एसिड्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा आता है टिकोइक एसिड। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में टिकोइक एसिड एब्सेंट। इन ग्राम पॉजिटिव teichoic acid is present. Now peptidoglycan, percentage of peptidoglycan in gram negative bacteria is only 10%, but in gram positive bacteria 60 to 90%. Now lipid, in gram negative bacteria 11 to 22% and in positive 1 to 4%. इफेक्ट ऑफ एंटीबायोटिक, जब एंटीबायोटिक दिया जाता है उसका क्या होता है, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया शोज रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दे आर ससेप्टेबल, वो एंटीबायोटिक से समाप्त हो जाते हैं। इफेक्ट ऑफ लाइसोजाइम एक्शन, जितने भी लाइसोजाइम हैं, एनालाइज करने वाले एंजाइम्स हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया दे आर रेजिस्टेंट, इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और ग्राम पॉजिटिव दे आर ससेप्टेबल, इन पर प्रभाव पड़ता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जब लाइसोजाइम एक्शन शो करता है तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इस पर इसका प्रभाव पड़ता है। आप कहते हैं ये ससेप्टेबल है, बट ग्राम पॉजिटिव दे आर रेजिस्टेंट। अब हम आते हैं फ्लैजिलम पर। फ्लैजिलम, इसका जो बेसल ग्रेन्यूल होता है 4 रिंग और ये होता है 2 रिंग का। सेल वॉल लेयर ट्रिपल लेयर इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया that is single layered. Next, lipopolysaccharide in gram negative bacteria that is 50% and in gram positive few. Lipoprotein 15% in gram negative bacteria, few in gram positive bacteria. Now, dry weight of cell wall 10 to 20% of total bacterial cell in gram negative, 20 to 40% of total bacterial cell in gram positive. इस प्रकार से आज हमने लास्ट में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियाइड्स,
के बारे में डिस्कस किया और ये पूरा का पूरा सेल वॉल विथ कंपैरिजन इन ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव, दैट इज फिनिश्ड। अगले लेक्चर में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेंगे। आज बैक्टीरिया का हमारा थर्ड लेक्चर है और ये लेक्चर सीरियल से चल रहा है। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर बीएससी पार्ट 1, एमएससी एंड क्लास 12th सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड टोटल, एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाउंडेशन एंड नीट। इस प्रकार से आप बैक्टीरिया का थर्ड सेल वॉल पूरा का पूरा ये हमारा कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि ये चीज़ें सीरियल से 3 पार्ट में हुई हैं। अगले पार्ट में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन लेंगे। इस तरह से आप सीरियल से पढ़ें। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है और उस प्लेलिस्ट से आप हमारे सारे वीडियोस एक सीरियल से देख सकेंगे, चैप्टर वाइज देख सकेंगे, पार्ट वाइज देख सकेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।